بال کیسے لگ رہے ہیں؟ اچھے لگ رہے ہیں. السلام علیکم. اچھی لگ رہی ہے. السلام علیکم. سو یہ ہے ہمارا سیکنڈ سیریز, جو ہمارا سیکنڈ ویڈیو آف آر سیریز. بیٹھا ہوں جی بہت اچھے بیٹھے ہوئے. سو یہ ہے ہماری سیکنڈ ویڈیو آف دا سیریز, جہاں ہم بات کریں گے کینیڈین امیگریشن کے بارے میں. سو جو ہماری پہلی ویڈیو تھی وہ تھی پروز اینڈ کونس آف کینیڈین امیگریشن, جس کو میں نے لنک کر دیا ہے, تو وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سو جعفر پاپ کوئز, آج کی ہماری ویڈیو کا سبجیکٹ کیا ہے؟ آج کے سبجیکٹ آج کس کو آنا چاہیے, کس کو نہیں آنا چاہیے, کس کو. بالکل. سو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہو شوڈ امیگریٹ ٹو کینیڈا, بیکاز میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ اپنے سوال بھی بھیجیں. سو جو مور لائک کس ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں. آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ ڈفرینٹ اسٹیجز جس کے اندر آپ آتے ہیں. سو آج ہم بات کریں گے کہ آپ ڈفرینٹ اسٹیجز جس کے اندر آ سکتے ہیں, تو ہم ان اسٹیجز کی بات کریں گے کہ جو ہمارے ایکسپیرینس اور آبزرویشن ہے اس کے لحاظ سے. کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, جو لوگوں کی کوئریز آ رہی تھی کہ ہم لوگ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, ہم لوگ بہت ویل سیٹلڈ ہیں, اور ہاں بیچارے لائک آپ لوگوں کو تھوڑی جنرلی ڈسپوائنٹمنٹ ہوگی آ کر. وہ نہیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اسپوائلر الرٹ کرنا ہوتا ہے. ہم جو ہے نا ایک نیا ٹول استعمال کر رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں اس کیمرے کو, اینی وے, سو وی یوزنگ اے ڈفرنٹ اسٹینڈ, تو وہ جعفر کو زیادہ پسند ہے. کیا بکواس ہے, میری طرف آئے, وائی از اٹ کمنگ ٹوورڈز می. ہاں آئی تھنک اٹ لائک جعفر مور. اینی ویز, اچھا چلے, اوکے. سو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر اس کو پراپ کرنا ہے نا تو بس ایک اسٹینڈ اور اس پہ کر دو, 4 کتابوں کے اوپر, 4 کتابوں پہ کر دو. اچھا اوکے. سو بیسکلی وی آر, ظفر یہ بہت اونچا ہے, آئی تھنک ایک بلوپرس کی بھی اس کی ویڈیو ہونی چاہیے. اچھا سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ, اچھا جعفر ہلنا نہیں ہے زیادہ, ٹھیک ہے نا. اچھا سو ناؤ وی آر اچھا سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ آپ کس ڈفرینٹ اسٹیجز کے اوپر آ سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگ جیسے مڈل ایسٹ کے لوگوں کی بات کر رہے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی 40s کے اندر ہیں, 30s کے اندر ہیں, کس اسٹیج کے اوپر آنا چاہیے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. دیکھو میں نے کرنا تھا, ہلے نہیں, پیچھے جا رہے ہیں. اچھا سو اب ہم ہلے نہیں. اچھا سو اوریجنل پوز میں اپوزیشن میں میں کیا کروں. اچھا سو اگر جعفر, اف یو ہیڈ ٹو چوز این آئیڈیل ایج ٹو کم ٹو کینیڈا, واٹ وڈ دیٹ بی؟ تمہیں پتہ ہے نا, میرے کبھی کوئی ریگریٹس نہیں ہوتے. تو میں جس ایج میں, ایکچولی دیٹس ویری ٹرو, جس ایج میں آیا تھا نا, I was almost 30, I think 29, almost کیا جوانی تھی. ہاں کیا جوانی تھی, کیا مزے تھے, کیا. And I came at the age of 28. ہاں آئی تھنک دیٹ از پرابلی دا پرفیکٹ ایج, کیونکہ ایک آپ کے پاس تھوڑا سا آپ کا ورک ایکسپیرینس ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا آپ کا ہوتا ہے, تو آپ اٹس ایزیئر فار یو ٹو لائک گیٹ ان ٹو دا ورک اسپیس. پہلی چیز آپ مطلب وہ جونیئر انٹرمیڈیٹ رول اس کے اندر آپ گھس سکتے ہیں, وچ از آلویز ایزیئر ٹو گیٹ ان ٹو. اس کے علاوہ جو آپ کو مطلب چیزیں آپ کو یہاں کرنی پڑتی ہیں, یو گوٹ ٹو کائنڈ آف ہٹ دا گراؤنڈ رننگ, اور اپنے جسٹ ٹو اسٹیبلش یور سیلف, I think it's much easier when you're in your 30s or even in your 20s. But like جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے, it just becomes a bit more difficult unless آپ بہت سارا پیسہ لے کے آئے, اپنا مڈل ایسٹ کا پیٹرو ڈالرز لے کے آئے, پھر تو آپ کے لیے زندگی میں نہیں. بٹ اسٹل یو نو دیر از, ہاں وی نو پیپل جو کینیڈا یو نو بزنس کلاس کے اندر آئے تھے, یو نو بیکاز ان کو لگتا تھا کہ بہت لمبا سفر ہے. بٹ یو نو وین دے کم ہیئر, دا ریالٹی ہیئر از کہ کبھی بھی آپ اپنی جو سیونگز ہوتی ہیں, اس آپ ایوری ڈے ایکسپینسز اگر کریں تو وہ بہت ہرٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنی سیونگس کو یوز کر سکتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے, گھر خریدنے کے لیے. جعفر آپ کو گردن کی جسچر کے ساتھ بھی تو وہ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بٹ آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے اگر آپ کو وہ چیزیں اپنے ایوری ڈے ایکسپینسز کے لیے یوز کرنی پڑے. سو اب ہم بات کرتے ہیں, سو یو نو 30s از اے گڈ ٹائم. آلسو جیسے میں اور جعفر ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو CIC.gc.ca ایک جو ویب سائٹ ہے, دیٹ از دا بیسٹ سورس, کیونکہ آج کل یو نو یو کین سی دے ہیو اے پوائنٹ سسٹم, یو کین انٹر ان ٹو دیٹ, ہے نا. آج کل جو پوائنٹ سسٹم ہے نا, کینیڈا اینڈ آئی تھنک آسٹریلیا, نیو زیلینڈ, ان سب کا نا پوائنٹ سسٹم ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس امیگرینٹس کو دے وانٹ دیم ٹو کم ان ٹو دا کنٹری, ایز اپوز ٹو جیسے US کا ہے, وہ ادھر بھی تھوڑا سا وہ ہے, لیکن ان کا زیادہ تر فیملی ریونیفیکیشن ہے, وچ از آئی گیس اے اسمالر پارٹ اوور ہیئر کہ آپ کے پہلے. تو آپ جو ہیں جو بھی جو آج کل کا سسٹم ہے, آپ اس میں اگر اپلائی کریں. سو جب جعفر نے اپلائی کیا تھا تو جعفر اٹ واز لائک بہت, جعفر کس صدی کا وقت تھا, کیا کس زمانے کا تھا؟ 2000 میں نے کب کیا تھا, میں نے کیا تھا جب میں نے اپلائی کیا تھا, اس زمانے میں آپ کو منیمم 2 سال کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا تھا. تو میں نے کچھ کیا تھا
2002-2003 समथिंग लाइक दैट. ठीक है. और हाँ, और सो मैंने डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई किया था. मैंने अप्लाई किया था एज अ स्पाउस, तो वो डिफरेंट कैटेगरी थी और उस जमाने में 6 months में हो जाती थी. आजकल तो सुना है 2 साल लगते हैं. सो व्हाट वी वांट टू से, मैंने इंपोर्ट किया. मेल ऑर्डर ब्राइड थी. तमानिया बेसिकली मेल ऑर्डर ब्राइड थी. जी. सो मुझे टेंशन ये हो रही है कि मेरे सर पे बाल आए हुए और वो कैमरा जो है ना साथ साथ हिल रहा है. अच्छा, एनीवेज, अब ना देखे आपकी गर्दन के साथ फील रही है कुछ बहुत ही सेंसिटिविटी है जहाँ पे लोगों के सर में दर्द हो जाएगा, जहाँ पे डोंट डू दैट, लोगों के सर के अंदर दर्द हो जाएगा. अच्छा, सो दिस वाज सपोज्ड टू बी अ सीरियस वीडियो, ठीक है ना. अच्छा, सो what we meant to say was कि जो rules होते हैं वो change होते रहते हैं. So आपके लिए best है कि आप जो cic.gc.ca है उसके ऊपर latest rules देखें. मगर हम बहुत resources होते हैं and they you know that's probably the best place. ये नहीं कि आपके मेरे दोस्त ने ये कहा था, क्योंकि rules जो है ना इतना change होते हैं, you can't rely on what someone else has experience. You need to go in and हाँ, ये ना कहे कि जी फलां दोस्त ने कहा था. Also like I know बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं, तो I would not comment on that. वो आपको you know of course कुछ लोग बिजी होते हैं, कुछ लोगों को पेपर अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होता है, बट बेस्ट है कि आप खुद उसको इन्फॉर्मेशन को देखें, ठीक है ना. even अगर आप किसी के थ्रू करा रहे हैं, कंसल्टेंट वगैरह के थ्रू, just make sure that you're aware of the rules for yourself. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं डिफरेंट एजेस की. हमने एक आइडियल एज की बात कर ली, अब हम डिफरेंट एजेस की बात करते हैं जिनके ऊपर आप आ सकते हैं, ठीक है ना. जैसे अब ज़ैनब आज बात करी थी, अगर आप यहाँ पैदा ही हो तो यू नो यू आर ऑलरेडी अ सिटीजन, ठीक है ना. सो विच इज़ चिल्ड्रन बॉर्न हियर इन कैनेडा, ठीक है. आई डू वांट टू से कि कुछ लोग यहाँ आते हैं और वो अपने बच्चे यहाँ पैदा करते हैं, ताकि उनको क्या कहते हैं, बच्चों को क्या कहते हैं, एंकर बेबीज कहते हैं. प्लीज़ ऐसे सिस्टम्स को किसी भी मुल्क के जो नहीं चलिए. सो किसी भी मुल्क के जो इमिग्रेशन के लॉज हैं उनको प्लीज़ एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है ना. सो एक हम बात करें कि जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं वो यू नो ऑब्वियसली, ठीक है ना, जो बच्चे कनाडा में पैदा होते हैं यू नो वो ऑब्वियसली यहाँ के नेचुरल सिटीजन्स लाइक होते हैं, ठीक है ना. लाइक सिटीजन्स होते हैं, दे बॉर्न सिटीजन्स ही हैं, बाकी तो नेचुरलाइज सिटीजन्स होते हैं. उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, ठीक है ना. अगर आप यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेड में अप्लाई करें या आप मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें तो उसकी बड़ी एक आसान स्ट्रीम होती है. अच्छा, another great way to come to Canada is that you apply for the undergrad programs या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप आ सकते हैं, ठीक है ना. उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को खुद देखें. सो कनाडा के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैंकूवर एरिया के अंदर, टोरंटो के अंदर, कैलगरी के अंदर, एडमिंटन के अंदर. अपना एरिया ऑफ स्टडी देखें जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, एंड ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी फील्ड के अंदर अप्लाई करें जिसके अंदर आपको फर्दर जॉब मिल जाए, ठीक है. सो ये अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर लें, ड्यू डिलिजेंस कर लें, इंडस्ट्री किधर है. और you know sometimes you know I guess all of the time people want to get into like the McGill's या आपकी UBC Toronto वगैरह, लेकिन you know then you also need to think about the universities like जैसे आपकी University of Regina होगी, Saskatchewan होगी. Think about कि आपने पढ़ाई के बाद क्या करना है. पढ़ाई के बाद क्या करना है, You need to integrate into the job market, right? तो आपकी इंडस्ट्री की तरह जो भी आप डिग्री कर रहे हैं उसकी बेसिकली इंडस्ट्री कहाँ है और किस जगह डिमांड है. जैसे यू नो टोरंटो एरिया के अंदर यू नो there is a lot of competition. You know, do you want to get into that or you want to get into somewhere where it's easier for you to get a job. बिल्कुल. जैसे जो ये प्रोविंसेस वगैरह, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, इनमें जॉब्स आर यूजुअली ईजियर टू फाइंड बिकॉज जैसे जाफर ने कहा कि वहाँ पॉपुलेशन थोड़ी जनरली कम है, ठीक है, एंड वहाँ की कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं. तो बट हैविंग सेड दैट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू कनाडा आना थोड़ा एक्सपेंसिव तरीका है, ठीक है ना. आपके पास बैंक ऑफ मम एंड डैड होना चाहिए. बैंक ऑफ मम एंड डैड होना चाहिए. सो it's always good to have a rich mom and dad, you know. Yes, so if you can afford that. Yes, loans होते हैं यहाँ, loans वगैरह होते हैं, but आप उन पे बिल्कुल डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर सकते. ऑल्सो स्टूडेंट्स के ऊपर लिमिट्स होती हैं कि वो कितने आवर्स के लिए काम कर सकते हैं. तो आप ये ना सोचे कि ओ जी मैं यहाँ आऊँगा और मैं फिर सारे वक्त काम करूँगा. स्टूडेंट्स फुल टाइम जॉब्स नहीं कर सकते, पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं. यूजली स्टूडेंट्स को जो जॉब्स मिलती है वो मिनिमम वेज पे मिलती हैं. सो ये थोड़ी सी सारी रिसर्च अपनी कर आएँ. आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम में भी आ सकते हैं, आप ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी आ सकते हैं, ठीक है. दैट्स अनदर वे एंड दैट्स अनदर वेरी लाइक वो आप अपनी जैसे आप 18, 19, अर्ली 20s, ये एक तरीका है कनाडा आने का.
ये इंटीग्रेट होने का बड़ा आसान तरीका है, बिकॉज आपका एक नेचुरली नेटवर्क बना हुआ होगा. क्योंकि ये जाफर जो है ना ज़ैनब को देख रहे हैं, जाफर वीडियो यहाँ बन रही है, प्लीज़ यहाँ देख लें. ये मेरा मियाँ जो है ना बिल्कुल यूट्यूबर नहीं है, इसको यूट्यूबर मुझे बनाना पड़ेगा, तो इधर देख लें. तो अटेंशन डेफिसिट, हाँ वो ज़ैनब करतब कर रही है, जाफर उसको देख रहे हैं. अच्छा, तो उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें. एक अच्छी बात ये होगी कि जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं तो आपको एक नेचुरल नेटवर्क बना हुआ होता है. सो दैट्स एन एडवांटेज, राइट? इट्स एक्सपेंसिव बट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू इंटीग्रेट. सेकेंड स्टेज वो होती है, आई थिंक, जो लोग अपने लेट 20s और अर्ली 30s के अंदर आते हैं, जो ये एक्सप्रेस एंट्री डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर जब कनाडा में देखा जाता है कि किस इंडस्ट्री के अंदर लोग रिक्वायर्ड है, आप उसके अंदर आते हैं. उसमें यूजली आप अडेप्टेबल होते हैं, आपकी एक एज ऐसी होती है, शुरू में आकर सबको ख्वारी होगी, ठीक है. मैं भी पापा की प्रिंसेस थी, और जब -30 के अंदर बस में खड़ा होना पड़ता था ना, बस स्टॉप के ऊपर खड़ा होना पड़ता था, तो लग पता जाता है, ठीक है ना, कि आपको होता है मैं पापा की प्रिंसेस के लिए ड्राइवर दरवाजा खोलता था. मैं फुल डिस्क्लोजर करके आया था, ठीक है, जो शादी की थी. सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट एज वेल. Know what you're getting into. It's not that easy, ठीक है. सबको लगता है भाई मैं तो शादी होकर आई थी, मेरा तो डिफरेंट तरीका था. मुझे तो पता भी नहीं था कि एडमिंटन जो है कोर्राय अर्ज के ऊपर कहाँ पाया जाता है. मैं कनाडा आई हुई थी, मैं एक वेल ट्रैवल्ड लड़की हूँ, तो मैं टोरंटो, मॉन्ट्रियल देखा हुआ था मैंने. मेरी एक दोस्त की शादी हो रही थी, तो वो रुखसती बनी, तो कमरे में आप बैठे हुए थे ब्राइडल रूम में, तो मैंने कहा तुम शादी हो कि कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा मैं एडमिंटन जा रही हूँ. मैंने कहा एडमिंटन ये कहाँ है? उसने कहा ये कनाडा में. मैंने कहा कनाडा के अंदर है? लिटरली आई रिमेंबर आई केम होम और मैंने ग्लोब के ऊपर देखा कि ये एडमिंटन कहाँ है. ये मुझे क्या पता था कि 1 साल बाद एक रिश्ता आएगा. और मैंने अपनी जब दोस्त को बताया तो शी वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन. शी वाज लाइक दैट्स इट, द बॉय इज फ्रॉम एडमिंटन, तुम शादी कर लो. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट though, क्योंकि जब मेरी भी इमिग्रेशन हुई थी तो मेरे अब्बा ने कहा हाँ, जाफर के मुझे बहुत अच्छी बात थी. किधर जाना है तुमने? मैंने कहा कनाडा में कोई 2-3 ही का वो शहर हैं, एक वो टोरंटो है, एक वैंकूवर है, और मॉन्ट्रियल में जा नहीं सकता क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती. तो मेरे अब्बा ने कहा कि नहीं कुछ और शहर भी हैं वहाँ. तो दिस वाज लाइक 2006 की बात है. तो उस ज़माने में ऑयल का काफ़ी काम हो रहा था. And my father was always smarter than me. And I also want to say कि जाफर के अब्बू जो हैं वो इकोनॉमिस्ट पढ़ते थे, and he is माशाल्लाह you know he was a professor. वो पढ़ाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा वेल रेड थे. तो इसलिए अगर आप किसी ऐसे बंदे से मशवरा करें, अगर आपके ख़ानदान में, हाँ एग्जैक्टली, जाफर के लाइक सीरियसली जाफर जो है ना, मैं अब्बा को देख के जो तो मैं फन हो गई. बट जो जाफर के अब्बू हैं, इसी तरह का अगर आपके खानदान में कोई अक्लमंद इंसान हो तो उनसे एडवाइस ले लें. यू नो एट दैट टाइम व्हेन ही एडवाइस जाफर अबाउट ऑयल एंड गैस 2006 के अंदर 5 में, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था उसका. तो 6 के अंदर ही वेंट लाइक यू नो there's एडमिंटन, कैलगरी एंड फोर्ट मैक ऊपर नॉर्थ के अंदर. तो he was the one who kind of directed me into कि अच्छा वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारी नौकरी हो सके. हाँ, so that was very good advice, right? तो उसके बाद you know I looked around and I found I actually had a network over here. जो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था पाकिस्तान में, कोई काला शाका कू में, lots of them were in Edmonton and Calgary. So you know, so think about that as well कि आपका नेटवर्क कहाँ, वर्क के हिसाब से नेटवर्क कहाँ हो सकता है, कहाँ आप बेहतर इंटीग्रेट कर सकते हैं, किधर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कुछ प्रोविंसेस हैं दैट दे रियली हेल्प यू. क्वालिफिकेशंस आपकी क्या कहलाती है, वो जो इक्विवेलेंसी के आपको उसके अंदर हेल्प करते हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट देते हैं. So these are all of these things you need to think about before you kind of think about where you want to go. But I also want to say that this in itself is a very huge topic for Canadian immigration. So Jafar and I will address this in a separate post, right? But having said that, जब हम ये बात कर रहे थे कि जब आप अपनी पढ़ाई के लिए आएँ या आप यहाँ जो भी एक्सप्रेस जो भी अपने प्रोफेशनल्स के ऊपर आएँ, तो आप इन पॉइंट्स को देख कर आएँ. इसी में जो ये हम अर्ली 20s और 30s की बात कर रहे हैं, इसी एज ग्रुप में एक प्रोविंशियल प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है ना. सो मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, एंड शी सेड कि शी क्वालिफाइज फॉर लाइक आजकल जैसे एज आई सेड राइट कि कनाडा के रूल्स डिफरेंट हैं. तो शी सेड कि शी क्वालिफाइज फॉर अ प्रोविंशियल प्रोग्राम. प्रोविंशियल प्रोग्राम्स कनाडा में ये होते हैं, हम डिटेल में बात करेंगे कनाडा के डिफरेंट प्रोविंसेस के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वहाँ मूव करने के.
बट प्रोविंशियल प्रोग्राम्स ये होते हैं कि कुछ प्रोविंसेस के अंदर क्योंकि लोग कम होते हैं, सो दे वांट टू अट्रैक्ट मोर पीपल एंड दे हैव जॉब्स, बट लोग वहाँ नहीं आना चाहते क्योंकि वो इतने अट्रैक्टिव प्रोविंसेस नहीं है, ठीक है. सो शी सेड कि आई क्वालिफाई फॉर अ प्रोविंशियल प्रोग्राम, बट हाउ वुड इंटीग्रेशन बी. सो शी वाज कंसर्न कि वहाँ पाकिस्तानी होंगे, सोशल लाइफ कैसी होगी. एक तो मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी आपको कुर्रा अर्ज पे हर जगह मिल जाएगा, ठीक है ना कहीं आपको पाकिस्तानी देसी स्टोर हलाल खाना ये आपको कनाडा में हर जगह मिल जाएगा, ठीक है. दूसरी बात ये कि हम स्मॉल टाउन कनाडा में काफ़ी रहे हैं, ठीक है ना. हम रजाइना में भी रहे हैं, हम लोग काफ़ी जगह स्मॉल टाउन. Regina was the capital of Saskatchewan. It's not really a small town. Tamani के हिसाब से Tamani is like London, Paris, New York है ना. उसके लिहाज से बट हर जगह का अपना एक फ्लेवर होता है, ठीक है ना. हमारे जैसे अपने भी फ्रेंड्स में से बहुत सारे लोग जॉब्स के सिलसिले में दे वेंट एंड लिव्ड इन स्मॉल टाउन्स बिकॉज वहाँ जॉब थी. तो आप कुछ सीखते ही हो इस एक्सपीरियंस से. और कैनेडियंस जो है एक बड़ी अच्छी कौम है. आप उनसे भी मिलकर देखें, आप कनाडा आ रहे हैं, आप उनसे भी मिलकर देखें. दूसरी बात एक्सेप्टेंस है बहुत इमिग्रेशन की, because it's a point based system, so your government has a lot of role to play, or they have a lot of say in के कौन आएगा इस मुल्क के अंदर. And because of that, there's a lot more acceptance, or and they can see कि आपकी or they have seen कि आपकी किस तरह इकोनॉमी में इंटीग्रेट होते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं इमिग्रेंट्स, स्पेशली इन कनाडा. हाँ. तो और बहुत सारे लोग यहाँ इमिग्रेंट्स ही हैं, राइट. सो ये तो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स. तो अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया. जो लोग 20s और 30s के अंदर आएंगे, ठीक है ना, उनके लिए ये पॉइंट्स हो गए कि उनके लिए आसान होगा आना, क्योंकि जो थोड़ी सी हार्डशिप्स हैं आकर आपको थोड़ा सा टाइम मुश्किल गुजारना पड़ेगा, ठीक है. सो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आए. अब बात करते बट क्योंकि उस एज ग्रुप के अंदर आप थोड़े से ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं तो आपका काम थोड़ा चल जाता है. जैसे अगर आपको यहाँ बस सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा है, राइट. अगर आपको इस्तेमाल करना पड़े तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं. अब बात करते हैं लोगों की जो अपनी 40s के अंदर है, ठीक है. कई दफ़ा लोग जो अपनी 40s के अंदर है, आई डोंट नो लाइक एज आई सेड, राइट, हाउ द पॉइंट सिस्टम वर्क्स आजकल. बट अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आप किसी प्रोविंशियल प्रोग्राम में क्वालिफाई करते हैं, या कई दफ़ा लोग बिजनेस वीज़ा के ऊपर भी आते हैं. ये कनाडा में एक बिजनेस वीज़ा भी है, इसमें यू कैन ब्रिंग इन सम मनी एंड यू कैन इमिग्रेट. उनके लिए क्या एडवाइस है? I think like we said, जो आप जितनी देर से आते हैं ना एज में, it's I guess a bit more difficult for you to integrate into that, especially अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, आप मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, you're used to that good life. I won't call it the good life, but उधर के हिसाब की जो luxuries comfortable life के आपको है कि मेरी हाउस हेल्प है, मेड है, ड्राइवर है, ये है वो, आपका फैमिली सपोर्ट, which you're not gonna get over here, right? So you need to come with that kind of frame of mind कि you will need to do a lot of hands-on kind of stuff. आपको घास अपनी काटनी है, अपने स्नो अपनी शवल करनी है, तो एडवल लेके आए और अपने ना घुटनों का ख्याल रखें उधर मिडल ईस्ट में, ठीक है. तो that's very important. बहुत सारे लोग आते हैं and they cannot integrate क्योंकि वो उनको होता है they've never lived this kind of a life. I think Middle East is a lot closer to Pakistan in terms of कि वहाँ की लाइफ किस तरह की होती है. फिर वो जब यहाँ आते हैं, एक सर्दी, ठीक है, don't worry about the weather, लेकिन we will talk about that. I think that's a बिल्कुल एक अलग वीडियो में हो सकती है. लेकिन lots of people come in and then they leave within like 5 or 6 months just because बहुत सारे लोग उस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ नहीं आते कि what to expect over here. हाँ, so it is difficult, right? Especially आप जितनी ज़्यादा एज के अंदर आएंगे, आप उतने established होंगे. बहुत सारे लोग, खासतौर पे जो लोग अपनी 50s के अंदर होते हैं, वो अपने बच्चों की वजह से आते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ के सिटीजन होते हैं तो आपके बच्चों को ट्यूशन फीस कम पड़ती है, तो फिर उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे इंटीग्रेट कर जाते हैं. बच्चे क्यों यहाँ अच्छे इंटीग्रेट कर जाते हैं? बिकॉज बच्चे सिस्टम का हिस्सा होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो हर रोज़ लोगों से मिलते हैं. तो आप भी कोशिश करें कि आप जितना इंटीग्रेट कर सकते हैं. इस पर मैं एक जो पॉइंट ज़रूर हमेशा ख़वातीन को कहती हूँ कि ठीक है, there might be one primary earner of the house, you might be a very traditional family where the husband is the primary earner of the house. एक तो यहाँ usually 2 incomes are required, ठीक है. But if you are lucky, like it's extremely lucky here to be, यहाँ कहते हैं कि it's क्या कह सकते हैं, एक बड़ा
privilege like क्या है कि अगर आप एक stay at home parent है, right? like बहुत कम families है जो इस बात को afford कर सकती हैं कि एक parent stay at home parent होगा, कि बच्चे घर स्कूल आएंगे तो आप you'll be there to welcome them. अगर आप stay at home parent है, even then try and integrate into society by volunteering. अपने बच्चों के स्कूल के अंदर volunteer करें, अपनी communities के अंदर volunteer करें, society में integrate होने की कोशिश करें. उससे आप ज़्यादा यहाँ जैसे जाफर ने कहा ना कि आप फिर आइसोलेशन का शिकार नहीं होंगे. फिर आपको ये वेदर शेदर के बहुत प्रोग्राम्स होते हैं. बोगाली प्लग इन कर दो बोगाली. हाँ बहुत सारे देयर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स. हर अपनी लोकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत न्यू इमिग्रेंट्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको आप हर एक के पास गूगल है, राइट? जस्ट गूगल इट. अपनी सिटी के लिहाज से देखकर बहुत गवर्नमेंट के पास फंडिंग होती है. जैसे जाफर ने बात की कि यहाँ कनाडा की इमिग्रेशन के अंदर गवर्नमेंट का बहुत एक, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स एक इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं. हाँ, तो देन दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स लोगों को इंटीग्रेट कराने में. तो आपकी जैसे लोकल मस्जिद है, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए लोगों से इंटीग्रेट करने की. बट लेट दैट नॉट बी दी ओनली प्लेस, राइट? ऑल्सो गो टू द लाइब्रेरी, ऑल्सो गो टू योर कम्युनिटी सेंटर. अपने नेबर से बात करें, ट्राई टू वॉलंटियर. यहाँ वॉलंटियरिंग लाइक इसके ऊपर तो पूरी एक अलग से वीडियो बन सकती है. वॉलंटियरिंग कितना एक इंटेग्रल पार्ट है कैनेडियन सोसाइटी का. दैट ऑल्सो गिव्स यू वर्क एक्सपीरियंस, राइट? हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड अ जॉब. दैट विल बी अनदर वीडियो दैट जाफर एंड आई विल टॉक अबाउट. बट जस्ट like a spoiler alert, like I got my first job because I volunteered. So that is how I was. Jafar was lucky enough to find a network here, but I found my first job by volunteering. So you have to find like different ways to integrate into society. अब हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी 60s 70s के अंदर आए. अब लोग कहेंगे भाई हम उसमें कैसे आ सकते हैं कनाडा के अंदर. जो हमने बात की कि फैमिली प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं. उस पर भी हमने बहुत केसेस देखे हैं, ठीक है ना, कि अगर कुछ लोगों के पेरेंट्स यहाँ आते हैं और 60s जो है ना कनाडा के लिहाज से बिल्कुल एजड नहीं है, ठीक है ना. 60 is the 40 over here. हाँ, यहाँ लोग जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना 60s के अंदर वो बस जी बिस्तर पे बैठ जाओ आप तस्बीह लेकर. यहाँ 60s के अंदर हाँ अल्लाह करे. यहाँ लोग पीपल आर खासतौर पे हम तो जिस नेबरहुड में रहते हैं लाइक लोग 86 87 के अपने घरों में रह रहे हैं, अपनी खुशी से रह रहे हैं, अपनी गार्डनिंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्विमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. सो यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सीनियर्स इज़ एंड बहुत प्रोग्राम्स है सीनियर्स के लिए. आपको एक सीनियर्स को सर्टेन बेनिफिट्स भी मिलते हैं, वो दैट इज़ ऑब्वियसली बट आई थिंक वो डिफरेंट होता है अगर आपको आपके बच्चे स्पॉन्सर करें. सो वो ऑब्वियसली एज यू हैव टू लुक इनटू द रूल्स. सीनियर्स के लिए भी यही है कि कहते तो 60 प्लस को यहाँ सीनियर्स हैं, बट अपने आप को सीनियर ना समझें. अगर यहाँ लाइफ के अंदर इंटीग्रेट करें, लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी में इतने फ्री प्रोग्राम्स होते हैं सीनियर्स के लिए. बस सिस्टम को यूज़ करें. ठीक है, आपने पाकिस्तान में कभी बस नहीं इस्तेमाल की, यहाँ करें. और आप जितने एक्टिव रहेंगे, यहाँ सीनियर्स के लिए बहुत डिस्काउंट्स होते हैं. तो यहाँ हर कम्युनिटी के अंदर रिक्रिएशन सेंटर्स होते हैं. जैसे हमारी एक फ्रेंड है, उनके फादर जो है वो ही जॉइंड अ जिम, वो बड़ा रेगुलरली जाते थे. अपने अगर आप यहाँ अपने बच्चों के पास आए हैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बेबी सिट करें. अपनी नेबरहुड के अंदर उनके बच्चों के थ्रू बहुत प्रोग्राम्स होते हैं फॉर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स विद द किड्स. मैं लाइब्रेरी जाती थी तो बहुत दफ़ा ये होता था कि अगर मैं अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स लाए हुए होते थे. सो ट्राई एंड इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, बिकॉज ये भी हमने बहुत देखा है कि पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे चाहते हैं अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना. एंड ऑब्वियसली वो क्यों चाहते हैं अपने पेरेंट्स को बुलाना? एक तो कि उनके बच्चों को ग्रैंड पेरेंट की सपोर्ट मिले. फिर कनाडा का जो हमने प्रोज में बात की थी पिछली वीडियो में, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है. सो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ कमिंग टू कनाडा दैट यू कैन स्पॉन्सर योर पेरेंट्स टू कम हियर. बिकॉज हमें रिसेंटली आई एम श्योर हर एक को तजर्बा हुआ होगा, आप डिफरेंट मुल्कों के जब मेडिकल सिस्टम का मुवाजना करें जिसके अंदर आपको पैसे देने पड़ते हैं, आप पैसे भी देते हैं फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते. तो कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम इज़ रियली गुड. और यहाँ एज अ रेजिडेंट और अ सिटीजन आपको उसका फ्री एक्सेस है. बट अगर आप यहाँ आते हैं तो उस एज के अंदर भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करें. बिकॉज हमने देखा है यहाँ कुछ लोग आते हैं बड़ी उम्र में बट वो सेटल नहीं हो पाते, और वो फिर कहते हैं कि बेटा हम बोर हो रहे हैं, हम वो फिर सिर्फ जियो टीवी देखते रहते हैं या पाकिस्तानी फ़ोन करते रहते हैं. तो वो ऐसे ना करें, यहाँ की सोसाइटी में इंटीग्रेट होने की कोशिश करें. और यहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट यू हैव टू बी द वन हु गोज आउट एंड गेट्स टू देम. हाँ, तो that's really important. That's really important. So जो यहाँ ना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और वो कहते हैं ना कि एवरीवन हैज़ टू पुल देयर वेट. तो हर किसी जो है ना, हर जो एक घर का फ़र्द है, क्योंकि यहाँ घरों का थोड़ा सिस्टम भी डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ हर एक ने काम भी खुद करना होता है, ठीक है. तो ये भी बात नहीं है कि कोई मेड आ रही है तो वो जो सफाइयाँ कर रही है. तो इसीलिए यहाँ हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप जितने हेल्दी रहेंगे तो आप उतने इंडिपेंडेंट रहेंगे. आई थिंक काफ़ी टॉपिक हो गया है ना. तो अब नेक्स्ट पे किस टॉपिक पर बात करें? नेक्स्ट पे आप बताएं.
ہائے شبانی آپ اللہ. بتائیں. اچھا نیکسٹ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں بالکل you're right. بات تو سن لیں کہ واٹ پارٹ آف کینیڈا ٹو موو ٹو بات کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, ہم یہ بات کر سکتے ہیں. یا اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ضرور ہمیں بتائیں, ٹھیک ہے. اور زینب کیا اینڈ میں کہنا تھا, زینب نے ہمیں یاد کرانا تھا. Please like and subscribe. ہاں یہ زینب ہمیں یاد کرا رہی تھی کہ ہم نے یہ ضرور کہنا ہے. سو پلیز لائک دس ویڈیو اینڈ ڈو سبسکرائب. ہلائیں نہیں, ٹیبل کو نہیں ہلائیں. اوکے خدا حافظ. آپ بھی آ جائیں, یہ ہمارا چوتھا نمبر. Stop it. خدا حافظ. میں